Good morning future officers, welcome to EduTap and welcome to another important CT 360 सीरीज सेशन जिसके अंदर हम डिस्कस करते हैं अपने इंपॉर्टेंट जीए एंड ईएसआई करंट अफेयर्स को। और आज के सेशन में वी विल बी कवरिंग द इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स ऑफ 17th to 18th of December 2024 and this session will be very helpful for all the aspirants who are preparing for RBI, SEBI and the NABARD exam। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर इसके अलावा आप किसी और बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये सेशन आपके लिए काफी यूजफुल होने वाला है। तो बढ़ते हैं अपने आज के सेशन की तरफ। सो दीज आर द टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू कवर इन द टुडेज सेशन व्हिच इंक्लूड्स वेरी टॉपिक्स like Kumbh Sahayak is here, Tulsi Gauda, Slinix, some defense exercises are there, important days are there, some other important initiatives and awards which we have seen in the news articles in the past 2 days, they have also been covered. So let's start the today's session with the very first news article that is on the Top Sustainability Initiative Award. So guys, ये award basically it recognizes the excellence in the research and development of the recent टेक्नोलॉजीज। ठीक है, तो यहां पर यह अवार्ड दिया गया है तेलंगाना पुलिस को। सो तेलंगाना पुलिस हैव बीन ऑनर्ड विद दिस टॉप सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव अवार्ड एट द डिजिटल इंजीनियरिंग अवार्ड्स। तो इस सेरेमनी के टाइम पर यह अवार्ड तेलंगाना पुलिस को दिया गया। कौन सी कैटेगरी के अंदर दिया गया? इट वाज गिवन इन द चैलेंजर कैटेगरी। ठीक है, सो दिस अवार्ड इज रिकॉग्नाइज्ड the innovative use of GIS and artificial intelligence technologies during the 2024 Ganesh Festival Idol Immersions. Let me tell you, my dear friends, with its innovative ways which have been taken by Telangana Police. So Telangana Police has basically set up a global benchmark in terms of seamlessly integrating the different technologies, including GIS and AI. With the help of this, they have seamlessly integrated the safety, sustainability, and the large-scale crowd management. Let me tell you guys, during the Ganesh festival they have basically geotagged around 1.5 lakh Ganesh idols, and we all know that during the Ganesh Chaturthi festival there is a immersion of the Ganesh idol. So basically in sabhi idols को geotag किया गया and so that we can manage the crowd, we can manage the traffic. तो इन सभी चीजों के लिए इन्होंने इन innovative technologies का इस्तेमाल किया, for which Telangana Police has been given the Top Sustainability Initiative Award. ठीक है, सो ये अवार्ड सेलिब्रेट करता है ग्लोबल एक्सीलेंस इन डिजिटल इंजीनियरिंग एंड इनोवेशन, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। तो यहां से हमें याद रखना है कि तेलंगाना पुलिस को ये अवार्ड दिया गया है, किस कैटेगरी में दिया है? चैलेंजर कैटेगरी के अंदर दिया गया है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल। तो नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल इज अबाउट द न्यूली लॉन्च स्कीम दैट इज द क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर ENWR बेस्ड pledge financing. So guys, basically let me tell you, I am only just giving you the overview of the scheme because this will be discussed by Gurkera sir in a detailed manner in the upcoming government scheme sessions जो हर Monday, Wednesday, Friday को at 10 AM रहता है मॉर्निंग के अंदर। ठीक है, so as you can see, this credit guarantee scheme for the electronic negotiable warehouse receipts based pledge financing has been launched with a corpus of ₹1,000 crore। अब गाइस ये स्कीम क्या है? सी पोस्ट हार्वेस्ट के बाद the farmers are having their commodities and they store their commodities in the warehouses। ठीक है, सो warehouses के अंदर ये अपनी commodities को store करते हैं and from the warehouse they basically get the ENWR, that is basically electronic negotiable warehouse receipt। और ये warehouse receipt is basically a kind of proof that yes, they have stored their commodities in the government approved warehouses, and against these receipts now these farmers have been allowed to take loan। See guys, we all know that post harvest के बाद there are a lot of expenses that farmers are having. It can be related to your their daily expenses, it can be related to the expenses related to being ready for the next cycle of the season। so यहाँ पर कोई भी किसी भी तरीके का एक्सपेंस हो सकता है फार्मर का, तो उनकी उन नीड्स को पूरा करने के लिए ये एक प्लेज फाइनेंसिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है और इसके लिए कॉर्पस प्रोवाइड किया गया 1,000 करोड़ रुपीस का। अब इसके अंदर क्या होगा? तो बेसिकली लेंडर्स के लिए एक तरीके की श्योरिटी है कि इन केस फार्मर्स आर नॉट पेइंग बैक दैट पर्टिकुलर लोन, देन these lenders will be able to recover that amount from this corpus of ₹1,000 crore। so that is all that I will be discussing here about this scheme। I hope कि आपको बेसिक चीज यहाँ पता चल गई है। और ये स्कीम बेसिकली लॉन्च की गई है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन।
आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। तो यहाँ पर कॉर्पस का अमाउंट 1000 करोड़ रुपीस है। स्कीम का नाम, मिनिस्ट्री का नाम मैंने आपको बता दिया और बेसिक बता दिया कि इस स्कीम के अंदर क्या रहने वाला है। रेस्ट ऑफ द डिटेल्स विल बी डिस्कस्ड बाय गुरकीरत सर इन स्कीम सेशन। आई होप दिस इज क्लियर। मूविंग टू द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल दैट इज अबाउट इंडियाज फर्स्ट डेटाबेस डायबिटीज बायोबैंक। तो इंडिया का पहला डायबिटीज बायोबैंक को इस्टेब्लिश किया गया चेन्नई के अंतर्गत। जब हम बात करते हैं बायोबैंक्स की, तो बायोबैंक्स प्लेज अ रियली अ क्रिटिकल रोल इन टर्म्स ऑफ रिसर्च, स्टोरिंग, कलेक्टिंग एंड प्रोसेसिंग द बायोस्पेसिमेंस। तो बेसिकली इंडिया के अंदर वी ऑल नो दैट डायबिटीज इज अ काइंड ऑफ रियली एमर्जिंग प्रॉब्लम एंड एन इशू इन द इंडियंस। सो इंडिया का पहला डायबिटीज बायोबैंक इस्टेब्लिश किया गया है चेन्नई के अंदर एंड दिस विल बी अगेन फैसिलिटेटिंग रिसर्च ऑन द डायबिटीज। सो डायबिटीज किस किस तरीके की है इंडिया के अंदर, व्हाट काइंड ऑफ डायबिटीज आर देयर फ्रॉम विच इंडियंस आर सफरिंग, उनके सारे ब्लड सैंपल्स, तो इन सभी चीजों को कलेक्ट किया जाएगा, स्टोर किया जाएगा, प्रोसेस किया जाएगा, विच कैन बी फर्दर यूज्ड फॉर द साइंटिफिक एडवांस्ड रिसर्च ऑन डायबिटीज। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ये किसका इनिशिएटिव है? इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च along with the Madras Diabetes Research Foundation। तो MDRF और ICMR का एक कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव है, दैट इज द इंडियाज फर्स्ट डायबिटीज बायोबैंक। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि दिस विल बी द रिपोजिटरी ऑफ पॉपुलेशन बेस्ड बायोलॉजिकल सैंपल्स। तो बायोलॉजिकल सैंपल्स को कलेक्ट किया जाएगा, प्रोसेस किया जाएगा, स्टोर किया जाएगा और डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा इन बायोस्पेसिमेंस को टू असिस्ट साइंटिफिक स्टडीज। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायबिटीज लाइक टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज, जेस्टेशनल डायबिटीज, तो इन सभी तरीके के सैंपल्स को यहां पर स्टोर किया जाएगा। ठीक है, so it is really a good step from the government in order to focus on the study related to the diabetes so that we can really get out of this particular problem. I hope this point is clear guys. Let's move on to the next news article, but before that यहाँ पर क्या important है, इंडिया का पहला डायबिटीज बायोबैंक है। सो ऑलवेज सच काइंड ऑफ न्यूज आर्टिकल्स अट्रैक्ट्स द अटेंशन ऑफ द एग्जामिनर, दैट्स व्हाई हमें याद करना है कि इसको कहां पर एस्टैब्लिश किया गया, चेन्नई के अंदर। किसका ये इनिशिएटिव है? ICMR और MDRF का। ओके, बढ़ते हैं अगली न्यूज आर्टिकल की तरफ, दैट इज एन MOU बिटवीन NCERT एंड फ्लिपकार्ट। तो गाइस NCERT और फ्लिपकार्ट वी ऑल नो ई-कॉमर्स कंपनी इन इंडिया। तो बेसिकली इन दोनों ने एक MOU साइन किया है अंडर विच दे विल बी एंश्योरिंग अफोर्डेबल एंड सीमलेस अवेलेबिलिटी ऑफ द NCERT पब्लिकेशन। गाइस वी ऑल नो जो हमारे स्कूल से वहां पर NCERT की टेक्स्ट बुक्स को फॉलो किया जाता है, तो काफी टाइम्स क्या होता है कि टायर 2 और टायर 3 सिटीज के अंदर देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ द बुक्स एंड स्टूडेंट्स की स्टडी सफर होती है बिकॉज ऑफ द अनअवेलेबिलिटी ऑफ दैट स्टॉक ऑफ द बुक्स। दैट्स वाई, ताकि उनको कोई अनअवेलेबिलिटी ना हो और उनको टाइमली बुक्स प्रोवाइड की जा सके, दैट इज वाई दिस MOU हैज बीन साइंड बिटवीन NCERT एंड फ्लिपकार्ट। लेट मी टेल यू, recently in the previous month we have covered that similar kind of MOU was been signed by NCERT along with the Amazon। तो Amazon और फ्लिपकार्ट दोनों के साथ ही इस तरीके का MOU NCERT यहां पर कर चुकी है साइन। ठीक है, NCERT फुल फॉर्म क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। सो दिस इज गोइंग टू एनहांस अवेलेबिलिटी ऑफ NCERT टेक्स्ट बुक्स, और NCERT को सेटअप किया था 1961 में। इसके डायरेक्टर का नाम अभी है प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी। तो हमने सारी डिटेल्स को कवर किया है अबाउट द MOU बिटवीन NCERT एंड फ्लिपकार्ट। आई होप आप यहां से कवर कर सकते हैं कि कौन सी वो पार्टीज हैं जिनके बीच में MOU साइन किया गया, व्हाट इज द एम ऑफ दैट पर्टिकुलर MOU, एंड वी हैव आल्सो कनेक्टेड दिस न्यूज आर्टिकल फ्रॉम द प्रीवियस न्यूज आर्टिकल, दैट इज व्हेन NCERT हैज साइंड MOU विद द Amazon। मूविंग टू द further details of this, so during this particular part guys, एक Google Learning Center को भी यहाँ पर लॉन्च किया गया एंड इसके अलावा 200 YouTube चैनल्स को क्रिएट किया गया है which will be simulcasting of PM E-Vidya DTH TV channels। We all know guys, recently PM E-Vidya के अंदर चैनल नंबर 31 फॉर द इंडियन साइन लैंग्वेज वॉज बीन लॉन्च्ड अंडर द PM E-Vidya। ठीक है, तो यहां पर और 200 YouTube चैनल्स को क्रिएट किया गया है। इसके अलावा निष्ठा, दैट इज नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसको लॉन्च किया गया था सो दैट वी कैन मेक श्योर जो हमारे टीचर्स हैं, एडुकेटर्स हैं, तो उनका भी हम कैपेसिटी एनहांसमेंट कर सकें। उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए निष्ठा इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया था। अब निष्ठा के इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग मॉड्यूल्स को लॉन्च किया गया। ET कौशल एंड एड्यू लीडर को भी यहां पर रिसेंटली रिलीज किया गया है। निष्ठा
के हमारे यहाँ 4 वेरिएंट्स हैं, निष्ठा 1.0, 2.0, 3.0 एंड 4.0. 1.0 इज फॉर एलिमेंट्री लेवल, 2.0 इज फॉर सेकेंडरी लेवल, निष्ठा 3.0 इज फॉर फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी एंड निष्ठा 4.0 इज फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन. तो यहाँ पर हमने फर्दर डिटेल्स को भी कवर कर लिया है अबाउट द निष्ठा एंड दिस पर्टिकुलर न्यूज आर्टिकल रिलेटेड टू द एनसीईआरटी. I hope this point is clear to all of you guys. Now let's move on to the next news article. So गति शक्ति विश्वविद्यालय का एक MOU साइन हुआ है with the Indian Navy, and as a part of this particular MOU they will be enhancing logistics related education, research and training. तो हमारे जो इंडियन नेवी पर्सनल्स हैं इनका कैपेसिटी बिल्डिंग किया जाएगा इन टर्म्स ऑफ लॉजिस्टिक्स रिलेटेड एजुकेशन, रिसर्च एंड ट्रेनिंग. और इस तरीके से जो इंडियन नेवी की लॉजिस्टिक फ्रेमवर्क है उसको हम और बेटर कर पाएंगे, सप्लाई चेन मैनेजमेंट को एनहांस कर पाएंगे, और जो ट्रांसपोर्टेशन और सस्टेनेबिलिटी है उसको भी हम एनहांस कर पाएंगे. ठीक है, सो दिस विल बी फैसिलिटेटिंग एक्सचेंज ऑफ एक्सपर्टीज एंड केस स्टडीज बिटवीन दीज टू ऑर्गेनाइजेशंस, दैट इज गति शक्ति विश्वविद्यालय एंड इंडियन नेवी. लेट मी टेल यू गाइस, building on the existing partnership of Gati Shakti Vishwavidhalaya with the Indian Air Force and Indian Army, now it has signed an MOU with the Indian Navy as well. And with this, it is catering to the education of these Indian defense personnel of the 3 armed forces, where they are basically working on the logistics कि कैसे हम logistic और supply chain management को और enhance कर सकते हैं in these Indian armed forces. I hope this is clear to all of you. अगर बात करें गति शक्ति विश्वविद्यालय की, so इसको 2022 के अंदर इस्टेब्लिश किया गया था अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज. तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंदर इसको इस्टेब्लिश किया गया कौन से ईयर में? 2022 के अंदर. सो ऑल द डिटेल्स वी हैव कवर्ड अबाउट दिस न्यूज आर्टिकल. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल इज अबाउट कुंभ सहायक. सो गाइस वी ऑल नो, हमने काफी पुरानी मूवीज में देखा और काफी स्टोरीज हम देखते हैं, सुनने को मिलती है कि कुंभ के मेले में लोग बिछड़ जाते हैं. ठीक है, पीपल गेट डिपार्ट and gets apart during the Kumbh Mela. So guys, that's why, so that every pilgrimage or every person who is visiting to have that devotional experience during the Kumbh Mela, which is going to take place in the January in the प्रयागराज. सो बेसिकली वहां पर लोगों की सहायता के लिए एक सहायक चैटबॉट का यहां पर लॉन्च हुआ है. तो प्राइम मिनिस्टर हैज लॉन्च द कुंभ सहायक चैटबॉट, और ये पहला अभी तक का AI पावर्ड चैटबॉट है फॉर द महाकुंभ. सो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस महाकुंभ इन माय प्रीवियस सेशंस इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर. ठीक है, तो ये जो चैटबॉट है ये क्या करेगा, जितनी भी हमारी एक्टिविटीज हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें महाकुंभ के बारे में पता होने चाहिए, इफ आई एम विजिटिंग द महाकुंभ मेला, तो वो सारी ही डिटेल्स मुझे इस चैटबॉट के जरिए मिल सकती हैं. इट विल बी प्रोवाइडिंग डिटेल्स टू गिव गाइडेंस एंड अपडेट्स ऑन द इवेंट्स टू डिवोटीज ऑन महाकुंभ मेला 2025. और ये जो चैटबॉट है इसको पावर कौन करेगा? इट विल बी पावर्ड बाय द AI फर्म कृत्रिम. हम वी ऑल नो दैट इट इज द AI प्लेटफॉर्म ऑफ ओला, राइट? सो इट विल बी डिलीवरिंग होस्टेड ओपन सोर्स लार्ज लैंग्वेज मॉडल सर्विसेज फॉर द चैटबॉट. अब इसको डेवलप किसने किया है गाइस? इस चैटबॉट को डेवलप किया है प्रयागराज मेला अथॉरिटी ने, अलॉन्ग विद द उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, अलॉन्ग विद समग्र जो कि एक एंकर पार्टनर है, और ये चैटबॉट 11 लैंग्वेजेस को सपोर्ट करेगा. सो एज वी ऑल नो दैट फ्रॉम द मल्टीपल स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री पीपल विल बी visiting Mahakumbh Mela, right? They will be attending Mahakumbh Mela. So that's why in 11 languages की एक language barrier ना हो, in order to access the details of the events with the help of Sahayak chatbot, this chatbot has been launched. Apart from that, my dear friends, Prime Minister मोदी जी ने यहाँ पर कुछ और रेल और रोड प्रोजेक्ट्स को भी लॉन्च किया, which were having the worth of around ₹5,500 crores at the प्रयागराज उत्तर प्रदेश. तो यहां पर आप देख सकते हैं, इट इज अ स्निपेट फ्रॉम माय प्रीवियस सेशन वेयर आई हैव डिस्कस महाकुंभ इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर. एंड वी ऑल नो कि उत्तर प्रदेश ने यहां पर महाकुंभ एरिया को भी एक नया डिस्ट्रिक्ट रिसेंटली डिक्लेयर किया था. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट वी नीड टू रिमेंबर. तो ये कहां पर होता है, कब होता है, वी हैव कवर्ड ऑल दीज पर्टिकुलर पॉइंट्स इन द प्रीवियस सेशन, और उसका लिंक मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है. तो आपके पास जब PDF आएगा इस सेशन का, आप डेफिनेटली इस लिंक पर जा सकते हैं. Otherwise, let me tell you that you can watch the 1st to 3rd December of the CT360 series session, जिसके जरिए आप इस पर्टिकुलर सेशन को एक्सेस कर पाएंगे. सो आई होप कि कुंभ सहायक आप सभी को काफी क्लियर है, और कुंभ सहायक की सहायता से जितने भी डिवोटीज हैं जो कुंभ मेला में जाएंगे, अगर आप भी प्लान कर रहे हैं जाने का, तो डेफिनेटली यू कैन यूज कुंभ सहायक चैटबॉट फॉर गेटिंग द फर्दर
detailed guidelines about the events which are taking place in the Mela. Moving to the next news article about the Tulsi Gowda. So guys, tribal environmental activist or Padma Shri awardee Tulsi Gowda has passed away recently. She was from the Karnataka district and she belonged from the tribe that is Halakki tribe. Halakki tribe से belong करती थी और इनको वृक्ष माते के नाम से भी जाना जाता था, as she was known for planting over 30,000 tree saplings in 14 years. 14 years में she planted 30,000 tree saplings and she took care of these saplings just like her children, and that's why she was known and she was being awarded Padma Shri in year 2021 for her work. Name is Tulsi Gowda from Karnataka. याद रखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल अबाउट द स्लिनेक्स विच इज द श्रीलंका इंडिया एक्सरसाइज. तो एक बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज है जिसका नाम है स्लिनेक्स. तो SL स्टैंड्स फॉर श्रीलंका, I स्टैंड्स फॉर इंडिया. ठीक है, तो जब भी डिफेंस एक्सरसाइज होती है किन कंट्रीज के बीच में हुई ये कवर करना है. उसके बाद सेकंड पॉइंट इज व्हाट इज द वेन्यू ऑफ दैट एक्सरसाइज, कहां पर एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया. That is, it was being conducted in Visakhapatnam and this will be taken place in 2 phases, that is harbor phase and the sea phase. तो 2 phases में इसको conduct किया जाएगा, harbor phase और sea phase के अंदर. इसके अलावा guys, let me tell you that this particular exercise started in year 2005 and again it enhances the maritime cooperation between India and Sri Lanka. Apart from the SLINEX exercise, there was another trilateral exercise which has taken place recently, that is the desert night exercise. तो desert night exercise एक trilateral exercise है. Trilateral मतलब there are 3 parties, 3 nations participating in that particular exercise, which includes India, France and UAE. तो India, France and UAE, they are conducting this exercise in the Arabian Sea and this is again going to enhance trilateral defense cooperation. That means defense cooperation in तीनों ही countries के बीच में यहाँ enhance होगा by conducting such kind of air exercise. So this exercise builds on the trilateral framework. अब guys, let me tell you कि हमने कब से स्टार्ट किया इस एक्सरसाइज को कंडक्ट करना. बेसिकली 2022 के अंदर इन तीनों कंट्रीज के बीच में एक बायलैटरल ट्राइलेटरल फ्रेमवर्क साइन हुआ था जिसके अंडर दीज एक्सरसाइजेज आर बीइंग कंडक्टेड नाउ. लेट मी टेल यू, इंडिया, UAE और फ्रांस दोनों के साथ बाकी एक्सरसाइजेज भी कंडक्ट करता है. फॉर एग्जाम्पल इंडिया और फ्रांस की बात करते हैं तो देयर इज अ शक्ति एक्सरसाइज विच इज अ एक्सरसाइज विच इज बीन कंडक्टेड बिटवीन द आर्मीज ऑफ द 2 नेशंस. ठीक है, तो ये आर्मीज के बीच में होती है. उसके बाद आती है हमारी वरुणा एक्सरसाइज और गरुड़ा एक्सरसाइज. तो ये आपको बताना है कि इसमें से कौन सी एक्सरसाइज नेवल एक्सरसाइज है और कौन सी एक्सरसाइज एयर एक्सरसाइज है या फिर एयरफोर्स एक्सरसाइज है. ठीक है, तो आप मुझे बताइए शक्ति, वरुणा, गरुड़ा. शक्ति का बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, इट इज बीन कंडक्टेड बिटवीन द आर्मीज ऑफ द 2 नेशंस. देन वरुण और गरुड़, ये 2 एक्सरसाइजेस यहां पर कौन सी डिफेंस फोर्सेस के बीच में की जाती हैं, प्लीज डू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल दैट इज फ्रॉम द इंपॉर्टेंट डेज एंड द फर्स्ट न्यूज आर्टिकल इज अबाउट द माइनॉरिटीज राइट्स डे. तो ये डे हम सेलिब्रेट करते हैं हर साल 18 दिसंबर को एंड इट कॉमेमोरेट्स द अडॉप्शन ऑफ द यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन बिलोंगिंग टू नेशनल और एथनिक, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज. सो गाइस, दिस डे बेसिकली awares us about the contributions of the minorities in the Indian society. Apart from that, whatever the discriminations that these minorities are facing, तो यहाँ पर इन सभी चीज़ों को ये highlight करता है ये day. And let me tell you that there are 6 notified minority communities in our country, and what these are, these include Buddhists, Muslims, Christians, Parsis, Jains and Sikhs. So these are the 6 notified minority communities in our country and we celebrate Minority Rights Day every year on 18th of December. Now on 18th of December there is another day that we celebrate, that is International Migrants Day. Again, to remember the contribution of the migrants and the problems that they face in migrating from one place to another. तो ये डे हम सेलिब्रेट करते हैं 18th of December को. एंड 4 दिसंबर 2000 को जनरल असेंबली ने इस रेजोल्यूशन को पास किया था वेयर दे हैव प्रोक्लेम्ड 18 दिसंबर एज द इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे. ठीक है, सो दीज वर द इंपॉर्टेंट डेज. नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर न्यूज आर्टिकल फ्रॉम द इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स. तो गूगल ने अपॉइंट किया है, गूगल इंडिया इज अपॉइंटेड प्रीति लोबाना एज द न्यू इंडिया कंट्री मैनेजर एंड शी विल बी सक्सीडिंग संजय गुप्ता. तो संजय गुप्ता को रिप्लेस करेंगे प्रीति लोबाना एज द गूगल इंडिया मैनेजर एंड द वाइस प्रेसिडेंट फॉर इंडियन ऑपरेशंस.
Moving to the next news article, that is on Sundays on Cycle. So Sundays on Cycle एक इनिशिएटिव जिसको रिसेंटली लॉन्च किया गया. लेट मी टेल यू गाइस, रिसेंटली फिट इंडिया साइकिलिंग ड्राइव को लॉन्च किया है न्यू दिल्ली से. ठीक है. एंड व्हाट इज द एम? द एम इज टू प्रमोट साइकिलिंग एज अ सस्टेनेबल एंड हेल्दी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. वी ऑल नो गाइस अबाउट द फिट इंडिया मूवमेंट. तो फिट इंडिया मूवमेंट को ही एक्सटेंड किया गया है विद द हेल्प ऑफ फिट इंडिया साइकिलिंग ड्राइव, सो दैट द गवर्नमेंट कैन इनकलकेट द हैबिट ऑफ साइकिलिंग among the Indian population. Let me tell you, earlier this event was being titled as Fit India Cycling Tuesdays. ठीक है. But now seeing the demand of the public and the convenience of the public, now they have changed this part and it has renamed as Sundays on Cycle. And this cycle drives will be taking place every Sunday now, and that will be taking across 1000 locations across the length and breadth of our nation. ठीक है. अब इसको ऑर्गेनाइज किसने किया? It was been organized by Ministry of Youth Affairs and Sports, Fit India Movement along with Cycling Federation of India and My Bharat. तो My Bharat, Cycling Federation of India and Fit India Movement, इन तीनों ने मिलकर ऑर्गेनाइज किया है Sundays on Cycle को. I hope this point is clear to all of you. Now let's try to cover other important details about Fit India Movement. तो Fit India Movement को 29 अगस्त 2019 को लॉन्च किया गया था. What was the aim? The aim was to basically make fitness a integral part of our daily lives. हमारी daily lives के अंदर fitness activities को inculcate करने के लिए, so that the Indian population is fit. That's why this Fit India Movement was being launched. And this brings about behavioral changes and move towards a more physically active lifestyle in our country. Let me tell you guys, इसी के साथ ही एक Fit India School Week को भी launch किया था in 2019. In 2019, Government of India conceived the idea of Fit India School Week so that we can generate the awareness about fitness among the school students, among the teachers, parents, and the other school staffs, right? So let me tell you, after that they thought that why not we just come up with the whole idea, and that's why they transformed it into a Fit India Week 2024. And this year, Fit India Week 2024, we are observing from 15th November 2024 to 31st December 2024. So 15th November से 31st December को we are celebrating Fit India Week, and during this week we are promoting the campaign of FIW24 and Fit India. So guys, these are the important things we need to remember from the exam point of view. अगर हम बात करते हैं Fit India Movement की, it was an initiative under the Ministry of Youth Affairs and Sports. A very important point. So हमने इस डिटेल को अच्छे से डिस्कस कर लिया है. बढ़ते हैं अगली न्यूज आर्टिकल की तरफ, where we have seen that the legendary Indian spinner Ravichandran Ashwin has announced his retirement. We all know right now we are having the Border Gavaskar Trophy taking place in Australia. And during that particular tournament, Ravichandran Ashwin, who is India's second most successful test bowler, he has announced his retirement from the international cricket. इन्होंने 537 wickets लिए हैं 106 test matches के अंदर अभी तक for India, and he has claimed 37 5-wicket hauls. That means 5 wickets in one innings. So that is 37 5-wicket hauls in tests. और यहाँ पर कुछ उनका वनडे इंटरनेशनल्स और T20 इंटरनेशनल्स का आपको रिकॉर्ड दिया गया है, just only to make you understand about his legacy and about his experience. But exam point of view say this information is not required to be remembered. Okay, so apart from that guys, we all know that World Test Championship is going on, and World Test Championship के 3 cycles में he is the first bowler to reach 100 World Test Championship wickets, और अभी यही leading wicket taker है in the World Test Championship, that is with the 195 dismissals in 41 matches. तो 41 matches में 195 dismissals ये कर चुके हैं. इनके बाद ऑस्ट्रेलिया के नाथन लियोन आते हैं, who is on the 190. Right? So this is something we need to remember. Moving to the next news article, that is about the Women's Hockey Junior Asia Cup 2024. तो इंडियन टीम ने इस टूर्नामेंट को जीता after defeating China in the finals, and Indian captain who has under whom Indian team has won this tournament is Jyoti Singh. So this is the important part that we need to remember here. Moving to the next important news article about Syed Mushtaq Ali Trophy title. So this is again a tournament which is related to the cricket, and this has been won by Mumbai defeating Madhya Pradesh in the finals, and Shreyas Iyer has led this particular team. और मुंबई ऐसी 4th team बनी है to get hands on this title for the 2 times. और सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी टाइटल किसने जीते हैं? सबसे ज्यादा जीते हैं तमिलनाडु ने, दैट इज 3 times. ठीक है.
तो दिस इज समथिंग दैट वी आर रिक्वायर्ड टू रिमेंबर, कौन सी टीम ने जीता, किसको हराया, कौन कैप्टन था, तो ये सारी चीजें हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है कवर करना। अब हम बढ़ते हैं गाइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। तो अभी तक हमने काफी इंपॉर्टेंट चीजों को कवर किया, अब क्वेश्चंस की बारी है, क्योंकि सिर्फ करंट अफेयर को कवर करना इज नॉट एट ऑल सफिशिएंट, वी आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू मेक श्योर कि हम केपेबल है कि हम क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम के अंदर यू विल बी रिक्वायर्ड टू सॉल्व द एमसीक्यूज। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, सो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन द मेजर एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज दैट इज डेजर्ट नाइट। तो डेजर्ट नाइट में कौन कौन से कंट्रीज थे? इट वाज इंडिया, यूएई एंड फ्रांस। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? ऑप्शन सी, दैट इज 1, 3 and 4। एब्सोल्युटली दिस इज द राइट आंसर। Next question, so Dash has been honored with the prestigious Top Sustainability Initiative Award and under which category? तो कौन सी पुलिस को मिला था, किस कैटेगरी के लिए मिला था? We all know गणेश उत्सव में जिन्होंने अपनी इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज को इंटीग्रेट किया, that's why it was been awarded and the name is Telangana Police and in the Challenger Trophy. Again option C is the right answer. Next question about the India's first diabetes biobank. तो 3 statements आपके सामने given है, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। तो 3 स्टेटमेंट्स में अगेन वी विल बी फोकसिंग ऑन द कीवर्ड्स। सो इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन चेन्नई टू फैसिलिटेट एडवांस रिसर्च ऑन डायबिटीज एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स। बायोबैंक एक इनिशिएटिव है आईसीएमआर इन कोलैबोरेशन विद द मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन। इट एम्स टू कलेक्ट, स्टोर, डिस्ट्रीब्यूट बायोस्पेसिमेन फॉर पॉपुलेशन बेस्ड साइंटिफिक स्टडीज। So guys, all these statements are correct with respect to this particular first diabetes biobank of our country. So right answer will be option D, as all these statements are correct here. Next question is about the Indian cricketer who has announced his retirement and he is the second most successful test bowler. And what is the name? He is Ravichandran Ashwin. अगर हम बात करते हैं the most successful test bowler, that person is Anil Kumble, a very important point that we must remember from exam point of view. Moving to the next news article. Now guys, if you are still someone who is not able to answer these questions, let me tell you I am having a homework question for all of you. और अगर आप इस homework question का आंसर करेक्टली देते हैं तो you will be becoming the star performer of the today's session. अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन की, क्वेश्चन आप सभी के सामने है about the कुंभ सहायक चैटबॉट। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर AI स्टैंड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यहाँ इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। सो आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सी स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं। सेशन को पॉज कीजिए, मुझे बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर क्या है इस क्वेश्चन का सही आंसर। Now if I talk about the homework question from the previous session, so the previous session the question was on the Jalwahak scheme and the right answer to this question is option C, that is option 1 and option C, that is both 1 and 3 were correct. And these are the people who are the star performers from the previous session, including Gururaj, Udit, Sangeeta, Karan, Khushbu, Anusha, Rupav, Rishi, Mitra, Sabyam, Verma, Manish and Aditya. So all the people, well done my dear friends, and you have really shown that yes, you have answered the question correctly and you are the star performers of the last session. And it's really great to see that yes, all of you are answering the questions in the comment section, and that shows that yes, your preparation is also in the right direction and you are also able to understand the news articles that we are covering in our sessions. ठीक है जी। तो अगर आप अभी नए हैं हमारे YouTube चैनल पर, काइंडली सब्सक्राइब टू इट और आप हमारे बेल आइकन पर भी प्रेस कर सकते हैं, सो दैट यू कैन रिसीव ऑल द नोटिफिकेशंस अबाउट द लेटेस्ट वीडियोस दैट वी आर कमिंग अप विद ऑन आवर चैनल। अपार्ट फ्रॉम दैट आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, जहां पर आपको मिलेगी सेशन की PDF। सो PDF को एक्सेस करने के लिए यू हैव टू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, राइट। तो गाइज दैट वाज ऑल फ्रॉम द टुडेज सेशन। आई बिलीव कि आज का सेशन आप सभी के लिए काफी यूजफुल और फ्रूटफुल था। तो काफी लार्ज नंबर ऑफ न्यूज आर्टिकल्स को हमने कवर किया है आज। आई होप कि आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है सेशन से रिलेटेड या फिर गाइडेंस से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पोस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें ईमेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in पर, एंड साथ ही साथ यू कैन ऑल्सो कॉल अस टू एट 8146207241। तो गाइस दैट वाज ऑल। नाउ आई विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट सेशन। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको सेशन कैसा लगा और क्वेश्चन, होमवर्क क्वेश्चन का सही आंसर आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, विश यू ऑल हैप्पी लर्निंग।